Whenever we think England are about to do something in the World Cup, they fuck it up by either playing horrendous football or by what has happened this time, their squad selection. Man, you have to salute Thomas Tuchel for what he has done this time. He has just come for his revenge for the World War, I guess. Because how does a player like Harry Maguire or a Phil Foden or a Cole Palmer, heck, even a Jack Grealish, how can they not be a part of the England World Cup squad? But players like Jed Spence, Quansah, Henderson, Madueke and Ivan Toney make the final list. It just blows my mind. Before we get into the basically a rant by me, let's just get to know who are going to the World Cup. So in the goalkeeping position, we have Pickford, Dean Henderson, James Trafford. If we go on to the defenders, Reece James, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Gahey, John Stones, Jadon Quansah, Dan Burn. If we go into the midfield, there is obviously Declan Rice, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Kobe Mainoo, Jordan Henderson and Elliot Anderson. Next is attack. So there is Saka, Noni Madueke, Rashford, Anthony Gordon, Ivan Toney, Harry Kane and Oli Watkins. So you are telling me a Harry Maguire who has just had the best season of his life at Manchester United, Phil Foden, Morgan Gibbs White, इनके बारे में आपको पता ही होगा स्पर्स जाते वक्त कितने ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी. मारिनाकिस वाज लाइक कहीं नहीं जा रहा था. Jack Grealish who was regularly in the England setup, they all, and Trent Alexander-Arnold who whenever played for Real Madrid was one of the best players on the pitch, if not defensively but offensively. इन क्रिएशन, वो जो पासेस निकाल रहा था एम्बापे विनी को, उसने जो अपनी ग्लिम्सेस दिखाई थी ब्रिलियंस की, उसको आप नहीं लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में. उसके ऊपर आप लेके जा रहे हैं जेड स्पेंस हु वाज इन रेलीगेशन बैटल होल सीजन स्पर्स के साथ, और वो तो एक रेगुलर स्टार्टर भी नहीं है स्पर्स के लिए. वहां पे पेड्रो पोरो खेलते हैं. सो अगर आपको ये एक्सक्यूज देना है कि ट्रेंट वाज नॉट प्लेइंग रेगुलरली इन रियल मैड्रिड, तो जेड स्पेंस कौन सा रेगुलरली खेल रहे थे? और आप जिनको देख रहे हैं, ट्रेंट को रिप्लेस करना है डैनी कार्वाहाल को, वन ऑफ द बेस्ट right backs in the history of football. And who does Jed Spence need to replace? Pedro Porro. No disrespect to Pedro Porro, but Carvajal, Porro. And somehow Carvajal has not made the World Cup list and Porro has. Well, we will talk about in the upcoming video. We have all seen how Harry Maguire has been this season. उसने फुटबॉल में वो जॉय खोज के पाया है जो वो पिछले 4-5 सीजन्स नहीं खोज पाया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में. He is that leader in that back line जो relatively young है बाकी प्रीमियर लीग टीम से अगर आप कंपेयर करेंगे. If we talk about England में, Harry Maguire has always performed better in national team than in Manchester United. So अगर आप अभी देखें मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका फॉर्म, कैन यू एक्सपेक्ट वो इंग्लैंड में क्या कर सकते हैं? ऊपर से वो जो आपको एरियल एबिलिटी देते हैं, सेट पीसेस में आपको हेल्प करेंगे अगर आपको एक अच्छी डिलीवरी दे. और वो अच्छी डिलीवरी देने वाला कौन हो सकता था सेट पीस से? आर्नल्ड. लेकिन उनको भी आप नहीं लेके गए, उनके साथ आपने मैगवायर को भी घर छोड़ दिया. और मैगवायर की जगह जा कौन रहा है? जॉन स्टोन्स. लाइक यू ऑल अंडरस्टैंड, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, ऑन द बॉल वर्सेटाइल होते हैं, लेकिन आप क्या भूल रहे हैं कि वो पूरे सीजन ऑलमोस्ट इंजर्ड थे? आई डोंट गेट इट. और क्या कोई मुझे बता सकता है कि जॉर्डन हेंडरसन से आपको कौन सा इतना लगाव है? प्रीवियस मैनेजर साउथगेट हो गए, अब आप हो गए. मतलब जॉर्डन हेंडरसन हैज नेवर बीन दैट गुड इन इंग्लैंड जर्सी. प्रोबेबली जब वो लिवरपूल में थे तब वो बढ़िया परफॉर्म करते थे, लेकिन उससे और भी बढ़िया प्लेयर मैं आपको बता सकता हूँ. जैसे एडम वॉर्टन हैड अ फिनोमिनल सीजन विद क्रिस्टल पैलेस, लेकिन उनको आपने कंसीडरेशन में लिया कि नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता. नोनी माडुएके समहाउ मिराकुलसली मेड द इंग्लैंड वर्ल्ड कप स्क्वाड. मुझे तो नहीं पता कैसे, वो तो आर्सेनल में भी स्टार्ट नहीं करते हैं. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वो इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करेंगे? उनके वजह से कौन कौन से प्लेयर ओमिट हुए हैं आप वो भी तो देखिए जरा. कोल पाल्मर और फिल फोडेन आई कैन अंडरस्टैंड, वो इंटरनेशनल्स में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं है. पिछले मेजर टूर्नामेंट यूरोज में वो एक ये गोल या असिस्ट भी नहीं रजिस्टर कर पाए थे. लेकिन कोल पाल्मर who was the guy that scored that goal in the final. I get it, उनका सीजन वैसा नहीं गया था जैसा उनका प्रीवियस वाला गया था, लेकिन फिर भी यू अंडरस्टैंड वो इंग्लैंड के लिए जब भी खेले हैं वो एक स्टैंड आउट प्लेयर रहे हैं. द ओनली गुड पिक आई वुड से टुकेल हैड व्हिच वाज आउट ऑफ पॉकेट वाज कोबी मेनू. मुझे तो लग रहा था सीजन की शुरुआत में अंडर एमोरिम उनका वर्ल्ड कप गया, लेकिन ही गॉट अ चांस एट द वर्ल्ड कप एटलीस्ट. मुझे नहीं पता टुकेल के दिमाग से क्या जा रहा था जब उन्होंने ये स्क्वाड बनाई, बट इट्स नॉट लाइक इट्स ऑल ओवर फॉर इंग्लैंड. उनके पास अभी भी बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, कुछ तो बढ़िया परफॉर्म कर ही सकते हैं. उनके पास जो स्टार प्लेयर्स है अगर वो एक साथ क्लिक कर गए. प्लेयर्स टू वॉच आउट: डेक्लन राइस, जूड बेलिंगहम एंड हैरी केन.
who is their front line, who is their face currently. He just had the best season of his life. अगर आप उनके स्टैट्स देखे बुंदेसलीगा में, चैंपियंस लीग में, we all hope to see that same Harry Kane at the World Cup. और क्या पता वो इस टीम को डीप लेके जा सके. Bellingham did not have one of his greatest seasons, but लास्ट वर्ल्ड कप में ही वॉज अनडाउटेडली द बेस्ट प्लेयर ऑन हिज टीम. ऑल एक्शन मिडफील्डर जो हमने डिस्कवर किया था पिछले वर्ल्ड कप में, क्या वो ही रोल आप देखते हैं टुकेल को उन्हें देते हुए? मेरे हिसाब से यस, क्योंकि आप चाहेंगे कि आप नंबर 10 पे एजे या फिर मॉर्गन रॉजर्स के लिए स्पेस बना सके, who has been great with Aston Villa throughout the season, but it could have been better in my opinion at least. रीस जेम्स और एक इंजरी प्रोन प्लेयर रहे थ्रू द सीजन. इफ ही गेट्स इंजर्ड एट द वर्ल्ड कप, आप किसको देखते हैं उन्हें रिप्लेस करते हुए? मुझे आप एक स्ट्रेट फेस से नहीं बता सकते कि जेट स्पेंस इज बेटर देन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड. मे बी डिफेंसिवली, बट ट्रेंट इज नॉट दैट बैड यार. ये मुझे ज्यादा एक पर्सनल ग्रज लगा है. मार्कस रैशफोर्ड का एक बहुत ही मिक्स्ड सीजन रहा है बार्सिलोना के साथ. हाँ, उनका एल क्लासिको में वो परफॉर्मेंस हम सब ने देखा ही, बट ओवरऑल आप अगर बार्सा फैंस से उनका ओपिनियन पूछेंगे तो उनके हिसाब से एंड मेरे हिसाब से वाज नॉट दैट गुड ऑफ अ सीजन. फाइनली व्हाट डू आई एक्सपेक्ट ऑफ दिस इंग्लैंड टीम? क्या कितने दूर ये जा सकते हैं इस वर्ल्ड कप में? इज इट कमिंग होम? आई डोंट थिंक सो. इस टीम में क्या मिसिंग है मैं बता नहीं सकता, बट देयर इज जस्ट समथिंग मिसिंग. और इंग्लैंड के ऊपर हमेशा से ही वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने का प्रेशर रहता है और उसी प्रेशर के नीचे वो दब जाते हैं. इट्स रियली लाइकली टू हैपन अगेन. जर्मन फैंस वुड बी रियली हैप्पी राइट नाउ. Tuchel has done his job as a German spy in England. Realistic prediction, I would say semi-finals. Yeah, it sucks. They really had the potential to do something this time, but who knows? They might surprise us. Football is not predictable at the least. So I guess that's it for today. See you guys again later.